ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مرجان سرخ رنگ کی پیروں کو چھوتی میکسی میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ سرخ رنگ کے لباس میں اس کا چاند سا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں کاجل لگا ہوا تھا، جبکہ بھرے بھرے ہونٹ پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک سجی ہوئی تھی۔ اس لباس میں مرجان کا حسن بری طرح سے دہک رہا تھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں ہر طرح کے تاثرات سے خالی تھیں۔ وہ آئینے میں نظر آنے والے اپنے عکس کو پہچان نہیں سکی تھی۔ اس کا سراپا یکدم بدل گیا تھا۔ وہ اس قدر حسین ہو گئی تھی کہ اسے ایک بار دیکھنے والا واپس مڑ کر ضرور دیکھتا تھا۔ مرجان نے پلٹ کر اپنا چھوٹا سا کلچ اٹھایا اور سنہری بالوں کو ایک طرف کندھے پر ڈالا، جس کی وجہ سے اس کی کمر نمایاں ہوئی تھی۔ اونچی ہیل میں اپنے نازک سے پیروں کو مقید کیے وہ پارٹی میں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مرجان نے آئینے کے سامنے ہٹنے سے پہلے تنقیدی نظروں سے خود کو دیکھا۔ وہ حسن کی مورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے گئی۔ لاؤنج میں ہی اسفندیار آفندی اپنی ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مرجان مسکراتی ہوئی ان کے سمت گئی تھی۔ انہوں نے دکھ سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جانے کیوں ان کی آنکھیں جھلملا رہی تھی۔ بابا، میں جا رہی ہوں، آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مرجان نے ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، مرجان میری بچی، تم واپس لوٹ جاؤ، اس راستے پر قدم مت رکھو، خود کو اس آگ میں مت جھونکو۔ اسفندیار آفندی نے اسے ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اپنے بابا کی بات سن کر مرجان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر اس کی آنکھیں اس مسکراہٹ کا ساتھ دینے سے انکاری تھیں۔ بابا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی کھوئی ہوئی عزت اور آپ کا کھویا ہوا مقام آپ کو واپس دلا کر رہوں گی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو سب کچھ واپس لا کر دوں۔ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، اب ان کا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ان لوگوں کو ان کی غلطی کا احساس ہوگا، وہ آپ کو کچھ چیزیں واپس لوٹائیں گے، وہ جو کچھ آپ سے چھین چکے ہیں۔ مرجان کے لہجے میں اس وقت صرف انتقام کی آگ تھی، ایک ایسی آگ جو سب کچھ بھسم کر دینا چاہتی تھی، سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ اسفندیار آفندی نے سہم کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ وہ کیسے اس کو انتقام کی آگ میں جھونکنے دے سکتے تھے؟ مرجان، تو میرا کاروبار دوبارہ شروع کر چکی ہو، ہم لوگوں کی زندگی ڈگر پر آ گئی ہے، تمہیں کسی سے کوئی انتقام لینے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اسفندیار آفندی نے مرجان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا تھا۔ مرجان نے تھکی تھکی نظروں سے اپنے بابا کی سمت دیکھا، جو جانے کیوں خوفزدہ تھے۔ بابا، آپ کو اپنی بیٹی پر یقین ہے نا؟ بس تو پھر میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب پریشان ہونے کی باری ان لوگوں کی ہے جس کی وجہ سے آج آپ کی یہ حالت ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، آپ کی کھوئی ہوئی عزت اور آپ کا مقام آپ کو واپس لا کر دوں گی۔ مرجان نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اپنے بابا سے بے اختیار نظریں چرائیں۔ اس کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بابا، میں چلتی ہوں، مرجان نے ان کی سمت دیکھے بغیر ہی کہا اور لاؤنج کا دروازہ پار کر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس پارٹی میں موجود تھی جس میں جانے کے لیے وہ تیار ہوئی تھی۔ ہادی مرجان کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ تھی۔ مرجان، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس پارٹی میں آؤ گی، ہادی نے اس کی طرف دیکھتے بے یقینی سے کہا۔ تم میرے لیے سکسیس پارٹی رکھو گے اور میں نہ آؤں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ مرجان نے مسکراتے ہوئے ہادی سے کہا۔ ہادی اسے اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ لوگ کوریڈور پار کر کے اس ہوٹل کی بیک سائڈ پر آ گئے تھے جہاں پر پارٹی رکھی گئی تھی۔ طویل کنارے کافی لوگ موجود تھے۔ سب نے پلٹ کر مرجان کو دیکھا، جبکہ مرجان سب سے بے نیاز ہادی کے برابر میں کھڑی کسی سے مسکرا کر مل رہی تھی۔ ہر کسی کو حیرت اور تجسس تھا
कि अचानक बिजनेस की दुनिया में नमूदार होने वाली ये हसीन लड़की कौन है, मगर कोई भी ये बात नहीं जानता था, क्योंकि लड़की अचानक नमूदार नहीं हुई। उसका बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसने अपनों के हाथों धोखा खाया था और बीमार होकर बिस्तर से लग गए थे। और आज कई सालों बाद मरजान अपने बाबा का बिजनेस संभाल कर उसने दोबारा से इस दुनिया में कदम रखा। आलियार खान भी उस पार्टी में आया था। वो नहीं जानता था कि यह पार्टी किसके लिए रखी गई है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आज उसका सामना सालों बाद उस लड़की से होने वाला है जिस लड़की को वो अपनी जिंदगी से निकाल चुका था। आलियार खान ब्लैक पेंट कोट में मलबूस मर्दाना वजाहत का मुकम्मल शाहकार लग रहा था। वो उस लड़की को भूल ही गया था जिस लड़की ने उसकी खातिर सालों रोते हुए गुजारे थे, मगर आज एक बार फिर से वो उस लड़की के सामने जा रहा था। वो इस बात से कतई अनजान था। मरजान हादी के साथ खड़ी थी जब आलियार खान यकदम उसके सामने आया और फिर अपनी जगह साकित हुआ। मरजान भी उसे देख चुकी थी। आलियार तो जैसे सांस लेना भूल गया था। वो आज 5 साल बाद इस लड़की को देख रहा था जिसे वो भूल गया था, जिसकी छवि भी वो अपने जहन से मिटा चुका था, मगर आज 5 सालों बाद वो अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ उसके साथ मौजूद थी। आलियार को लगा इस जगह वो बिल्कुल तन्हा है। आसपास के सभी लोग वहां से बिल्कुल गायब हो गए थे। वहां सिर्फ वो था और सामने खड़ी वो लड़की थी जिसे उसने शिद्दत से चाहा था, मगर 5 साल पहले वो ऐसी तो हरगिज भी नहीं थी। आलियार माजी की भूल भुलैयों में खो सा गया। मरजान और आलियार के माँ बाप फैमिली फ्रेंड्स थे। असफंदियार आफंदी और शम्स खान दोनों ही बहुत गहरे दोस्त थे। सालों से उनकी दोस्ती कायम थी और वक्त के साथ साथ गहरी होती जा रही थी। शम्स खान और असफंदियार आफंदी ने साथ मिलकर अपने बिजनेस की बुनियाद रखी थी। दोनों ने ही इस कारोबार को तरक्की की मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की थी और वो लोग अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रहे थे। आलियार और मरजान दोनों ही अपने माँ बाप की इकलौती औलादें थीं और वो दोनों ही फैमिलीज अपने बच्चों पर जान छिड़कती थीं, जबकि आलियार को बचपन से ही गहरी स्याह आंखों वाली मरजान बहुत पसंद थी। उन दोनों की दोस्ती भी बहुत गहरी थी क्योंकि उन दोनों का ही एक दूसरे के घरों में बहुत आना जाना था। जाने कब आलियार के दिल में मरजान के लिए पसंदीदगी के जज्बात सर उठाने लगे। उसे खुद भी खबर ना हो सकी। उसे अपने जज्बात की खबर उस वक्त हुई जब उसे एहसास हुआ कि वो मरजान को पसंद करने लगा है। उसने अपने दिल की बात मरजान से करने का फैसला किया था। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था। उस रोज़ वो मरजान को उसके घर से पिक करके अपने साथ ले आया। मरजान ने हैरत से आलियार की तरफ देखा। आलियार, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम इतनी अचानक मुझे लेने आ गए? मरजान ने अपने बालों को ऊंची पोनी में कैद करते हुए कहा। मरजान ने उस वक्त ब्लैक जीन्स पर लूज सी सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहनी थी। चेहरा हर किस्म के मेकअप से आरी था, मगर उस हुलिये में भी वो आलियार को बेहद हसीन लग रही थी। वह अब झुककर अपने शूज़ के लेस बांध रही थी। आलियार ने मुस्कुराकर उसकी सिमत देखा। वो उसे अपने साथ लिए समंदर किनारे चलाया। वो जानता था कि मरजान को समंदर किस कदर पसंद है। मरजान की आंखों में दिए से जलने लगे। सूरज उफक पर अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था। मरजान गाड़ी से उतर आई थी। आलियार मरजान का हाथ थामे उसे अपने साथ लिए रेत पर चलने लगा। आलियार, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मरजान ने अपने चेहरे पर आने वाले बालों को पीछे करते कहा। मुझे तुमसे बात करनी है मरजान। आलियार अपनी जगह थम सा गया और फिर अगले ही पल वो अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठा। मरजान ने हैरत से आंखें फाड़े उसे देखा। मरजान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी? आलियार ने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डबिया निकालकर उसे खोला और मरजान के सामने कर दी, जिसमें एक हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। मरजान को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो, एक ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर बेहद खूबसूरत है। उस ख्वाब से जागने के बाद उसे आलियार खान जैसा जीवन साथी मिलेगा। पल भर में ही मरजान की आंखों में आंसू आ गए।
जिस बात को वो अपनी जबान पर लाने से भी डरती थी, वही बात हकीकत का रूप धारे उसके सामने खड़ी थी। मरजान, जल्दी मेरी मोहब्बत को कबूल करो, मेरे घुटने दुखने लगे हैं, आलियार ने कराहते हुए कहा। मरजान होश की दुनिया में वापस आई। उसने चौंक कर आलियार की तरफ देखा और फिर नम आंखों से मुस्कुराते हुए अज़बात में सर हिला दिया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आलियार ने वो नाजुक सी अंगूठी मरजान के हाथों की जीनत बना दी। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर दिल से मुस्कुरा दिए थे। काफी देर तक वो दोनों वहीं बैठे अपने मुस्तकबिल के सपने सजाते रहे, जहां सिर्फ वो दोनों थे। कोई भी दुख और तकलीफ उनकी जिंदगी में नहीं था, मगर वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि जल्द ही वक्त का कासा पलटने वाला है। उनकी मोहब्बत को किसी की नज़र लगने वाली है और वो दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। किस्मत उनके साथ एक भयानक खेल रचाने जा रही थी। डूबते सूरज की रोशनी में मरजान ने आलियार का चेहरा देखा, जिसकी निगाहें उसी सूरज पर टिकी हुई थी। मरजान ने उसी लम्हे खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर किया। असफंदियार आफंदी और शम्स खान, उन दोनों ने मिलकर जिस कारोबार की बुनियाद रखी थी, वो कारोबार तरक्की की मनाजिल तेजी से तय करता हुआ आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया। उस कारोबार की तरक्की में उन दोनों का बराबर का हाथ था। वो दोनों ही उस कारोबार में बराबर के हिस्सेदार थे, मगर काफी वक्त से शम्स खान के दिल में लालच जन्म लेने लगा। वो सारे कारोबार पर अपना होल्ड चाहते थे, जो कि मुमकिन नहीं था, क्योंकि असफंदियार आफंदी भी उस कारोबार में बराबर के हिस्सेदार थे। मगर अब शम्स खान उस कारोबार के बिला शिरकत गैर मालिक बनना चाहते थे। वो असफंदियार आफंदी को रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचने लगे। शम्स खान इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे कि आलियार और मरजान एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनका ये लालच उनके बेटे की जिंदगी उजाड़ देगा। शम्स खान ने कारोबार के पेपर्स बनवाए थे, जिनमें वो सब कुछ अपने नाम लिखवाना चाहते थे, और अब उन पेपर्स पर असफंदियार आफंदी के दस्तखत चाहिए थे, और ये काम इतना आसान हरगिज नहीं था। असफंदियार आफंदी एक पढ़े लिखे और अक्लमंद शख्स थे। वो कभी भी बगैर देखे किसी कागज़ पर साइन नहीं कर सकते थे, मगर शम्स खान ने यहाँ भी चालाकी और होशियारी से काम लिया। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त को जूस में नींद की गोली मिलाकर पिला दी। ये सब उस वक्त हुआ जब असफंदियार आफंदी शम्स खान से मिलने उनके घर आए थे, क्योंकि शम्स खान ने ही उन्हें फ़ोन करके अपने घर बुलाया था। असफंदियार अपने दोस्त पर भरोसा करके उनके घर चले गए। जब असफंदियार बेहोश हो गए तो शम्स खान ने मतलूबा कागजात पर उनसे साइन करवा लिए, और असफंदियार को इस बात की कानो कान भी खबर ना हो सकी। अब सब कुछ शम्स खान का था। वो इस कारोबार का बिला शिरकत गैर मालिक था। वो जल्द ही असफंदियार को सब कुछ बताकर कारोबार से बेदखल करने वाले थे, मगर उन्हीं दिनों आलियार ने उनके सामने मरजान के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया, जिसे सुनकर शम्स खान काफ़ी देर तक हिल भी न सके। वो हैरानी से अपने इकलौते बेटे का चेहरा देख रहे थे। वो अब किसी भी सूरत आलियार और मरजान की शादी नहीं कर सकते थे। बाबा, मुझे मरजान बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और वो भी मुझे पसंद करती है, आलियार ने अपने माँ बाप से कहा था, जबकि शम्स खान पहलू बदल कर रह गए। उन्हें मरजान किसी भी हालत में आलियार की जिंदगी में कबूल नहीं थी। वो किसी भी कीमत पर आलियार और मरजान की शादी नहीं कर सकते थे। उसके लिए अब उन्हें कुछ करना था। अगले रोज शम्स खान और रुबीना बेगम असफंदियार के घर गए। रुबीना बेगम किसी भी सूरत इस मामले में शम्स खान का साथ नहीं देना चाहती थी। उनके लिए आलियार की खुशियां ज़रूरी थी, मगर शम्स खान ने उन्हें साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने इस मामले में उनका साथ ना दिया तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। रुबीना बेगम तलाक की धमकी सुनकर मजबूर हो गई। उन्होंने मरजान को हमेशा अपनी बेटी ही समझा था और उसे एक माँ की तरह मोहब्बत दी थी, क्योंकि मरजान की माँ का तो इंतकाल हो गया था, मगर आज वो मजबूर हो गई। शम्स खान और रुबीना बेगम दोनों असफंदियार के घर पहुंचे। असफंदियार आफंदी तपाक से अपने जिगरी दोस्त से मिले।
मगर शम्स खान उनसे बहुत उखड़े हुए थे। मरजान भी अपने कमरे से निकल आई थी। शम्स खान ने मरजान की तरफ कड़े तेवरों से देखा और फिर असफंदियार के सामने कारोबार के कागजात फेंके। असफंदियार, अब सारा कारोबार मेरे नाम हो गया है। तुम्हारा इस कारोबार में कोई हिस्सा नहीं। तुमने खुद इन पेपर्स पर साइन किए हैं। शम्स खान ने खुश्क लहजे में कहा, जबकि असफंदियार के पैरों तले से जमीन निकली। उन्होंने हैरानी से अपने जिगरी दोस्त को देखा। वो बेयकीनी से उन्हें देख रहे थे। उन्हें अपनी समाअतों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। शम्स, ये तुम क्या कह रहे हो? इस कारोबार को हम दोनों ने साथ मिलकर शुरू किया है। ये कारोबार जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। तुम मुझे इस कारोबार से यूं बेदखल नहीं कर सकते। असफंदियार तकरीबन चीख पड़े। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब सारा कारोबार मेरा है। शम्स खान ने अपनी आंखें माथे पर रख ली थी, जबकि असफंदियार और मरजान हैरत और बेयकीनी से शम्स खान की तरफ देख रहे थे। शम्स खान, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। तुम मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे सकते। ये कारोबार हम दोनों ने शुरू किया था। इसे तरक्की की मंजिलों पर हम दोनों ने पहुंचाया है, और आज जब ये कामयाब हो गया तो तुम मुझे इससे बेदखल कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। असफंदियार आफंदी जैसे सदमे में चले गए। ये सारा कारोबार अब मेरा है। तुम इसमें हिस्सेदार नहीं हो। इसलिए बेहतर है कि हम लोग आज से ही ताल्लुक को ख़त्म कर दें। और वैसे भी तुमसे ज़्यादा मैंने इस कारोबार को तवज्जो दी है, इसके लिए मेहनत की है। शम्स खान ने तोता चश्मे की हद कर दी थी, जबकि असफंदियार बेयकीन नज़रों से उन्हें देख रहे थे, जिनके माथे पर बलों का जाल बिछा हुआ था और आंखें महज अजनबियत थी। जबकि मरजान भी बेयकीन नज़रों से उन्हें देख रही थी। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे बाबा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मरजान ने नम आवाज में शम्स खान को मुखातिब किया। शम्स खान ने एक अचपटी सी नज़र मरजान पर डाली। अब उनके लिए ज़रूरी हो गया था कि वो मरजान को आलियार की ज़िंदगी से निकाल दे, वरना अगर आलियार को ये सब कुछ पता चल जाता तो वो असफंदियार को उनका हिस्सा वापस कर देता। इसीलिए शम्स खान यहाँ सारी कश्तियाँ जलाने आए थे। मरजान, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो और उससे शादी करना चाहती हो, मगर तुम ये ख्वाब अपने दिल से निकाल दो कि वो तुमसे कभी शादी करेगा। उसने तुमसे महज कुछ वक्त के लिए दिल लगाया था। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। शम्स खान ने रुबीना बेगम को घूरते हुए मरजान से कहा, क्योंकि रुबीना बेगम उन सब के दरमियान बिल्कुल खामोश बैठी थी। मगर अभी भी रुबीना बेगम खामोश ही रही। वो इस बच्ची के दिल को तोड़ना नहीं चाहती थी, जिस बच्ची को उन्होंने हमेशा से अपनी बेटी समझा था। मरजान का वजूद जलजलों की जद में था। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? आलियार मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे ही शादी करना चाहता है। कुछ दिन पहले उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। मरजान ने बेयकीनी की कैफियत में कहा। वो जैसे पागल होने लगी थी। उसने हमें सब कुछ बताया है, तुम इस बारे में फिक्र मत करो। उसने साफ कहा है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, वो महज तुम्हारे साथ वक्त गुजारी कर रहा था। शम्स खान आज हर रिश्ते का लिहाज भूल गए थे। वो इस छोटी सी लड़की का दिल कई टुकड़ों में तोड़ रहे थे। उसकी आंखों में हर ख्वाब नोच कर फेंक रहे थे। तुम खुद सोचो, अगर आलियार तुमसे मोहब्बत करता और तुमसे शादी करना चाहता तो क्या ये सब करता? शम्स खान ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि मरजान के सर पर आसमान आन गिरा था। अगर तुम्हें जरा सी भी इज्जत नफ्स है तो मेरे बेटे से दूर रहना, और आइंदा उससे किसी भी किस्म का राब्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं। शम्स खान ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा और रुबीना बेगम को लिए उनके घर से निकल गए। शम्स खान के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। असफंदियार आफंदी और मरजान दोनों ही अपनी जगह साकित बैठे थे। मरजान ने आंसुओं भरी आंखें उठाकर अपने बाबा की तरफ देखा और फिर वो एक झटके से अपनी जगह खड़ी हुई। उसकी आंखें
बे यकीनी से फैली हुई थी और उसके मुंह से चीख निकली थी। असफंदियार आफंदी अपना दिल थामे सोफे पर गिरे हुए थे। मरजान उनकी यह हालत देखकर तड़प कर उनकी तरफ बढ़ी। बाबा, क्या हुआ? प्लीज बाबा, आंखें खोलें। मरजान ने बुरी तरह से रोते हुए असफंदियार को पुकारा, मगर वो अपने होश खो चुके थे। मरजान ने उसी वक्त एम्बुलेंस को फोन करके घर बुलाया और असफंदियार आफंदी को लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर्स उन्हें फौरन ही इमरजेंसी में ले गए, जबकि मरजान अपने सर पर हाथ रखे उन्हें इमरजेंसी में जाते देखती रही। असफंदियार आफंदी पर फालिज का अटैक हुआ था और साथ ही उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा था। मरजान बेतहाशा रोए जा रही थी। उसका इस दुनिया में उसके बाबा के सिवा कोई नहीं था। इस लम्हे वो खुद को इस भरी दुनिया में बेहद तन्हा महसूस कर रही थी। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी मुसलसल रो रही थी और अपने बाबा की जिंदगी के लिए दुआएं कर रही थी। अगर आज उन्हें कुछ हो जाता तो शायद मरजान भी मर जाती, मगर शुक्र था कि कुछ देर बाद असफंदियार को होश आ गया, मगर वो सारी जिंदगी के लिए चलने फिरने से माजूर हो गए थे। मरजान के मोबाइल पर मुसलसल आलियार की कॉल्स आ रही थी। मरजान ने अपना फ़ोन साइलेंट पर लगाया। वो इस वक्त आलियार से कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसे आलियार से नफरत महसूस हो रही थी। उसके और उसके घर वालों की वजह से आज उसके बाबा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। वो कैसे उस शख्स से बात कर सकती थी जिसने उसके जज्बात का मजाक बनाया था और उसे सबके सामने रुस्वा कर दिया था। मरजान उसी रोज़ असफंदियार आफंदी को अपने साथ लेकर वो मुल्क छोड़कर चली गई। वो इन लोगों से कोई राब्ता नहीं रखना चाहती थी। उसे आलियार खान से नफरत हो गई थी, जिसकी घर वालों की वजह से आज उसके बाबा माजूर हो गए थे। वो उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वो खुद को उन लोगों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल कर ले गई थी। वो उन लोगों की शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी जिन लोगों ने उसे और उसके बाबा को तकलीफ़ पहुंचाई। उस रोज़ के बाद से आलियार ने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की। मरजान उसे कुछ भी बताए बगैर उसकी ज़िंदगी से चली गई थी, जबकि आलियार इस सारे मामले से बिल्कुल बेखबर था। उसे नहीं पता था कि इन सब में उसका क्या कसूर है। उसने मरजान को बहुत तलाश किया, मगर मरजान ने अपने पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ी थी। आज 5 सालों बाद मरजान एक बार फिर से उसके सामने खड़ी थी। आलियार पहली नज़र में ही उसे पहचान चुका था और फिर जब उसने मरजान को पहचाना तो सांस लेना तक भूल गया। वो हक्का बक्का मरजान को देख रहा था। मरजान सुर्ख रंग की मैक्सी और मेकअप में कोई अप्सरा लग रही थी। आलियार ने उसे पहले उसका ये रूप कभी नहीं देखा था। वो तो उस मरजान से वाकिफ था जो जीन्स पर ढीली ढाली शर्ट पहने, बालों की ऊंची पोनी बनाए, बगैर मेकअप के रहती थी, मगर आज उसके सामने खड़ी मरजान कोई और ही थी। आलियार की आंखें जलने लगी। वो सुर्ख नज़रों से मरजान को घूर रहा था, जो 5 साल पहले उसे कुछ भी बताए बगैर उसकी ज़िंदगी से निकल गई थी और आज अचानक उसके सामने आ खड़ी हो गई थी। गुस्से से आलियार की माथे की रगें फूलने लगी। वो गुस्से से आगे बढ़ा और मरजान का बाजू सख्ती से थामा। आलियार उसे अपने साथ लिए पूल साइड की जानिब बढ़ा, जहां कोई नहीं था। मरजान उसके साथ घसीटती हुई जा रही थी, मगर मरजान को उसके इस रवैये पर कोई हैरत नहीं थी। मरजान का चेहरा हर किस्म के तासुरात से आ रही था। आलियार अपनी आंखों में गुस्सा लिए मरजान की सिमत देख रहा था। उसके माथे पर बलों का जाल बिछा हुआ था। इन गुजरे 5 सालों में वो मजीद हैंडसम हो गया था। चेहरे पर सजी घनी बियर्ड उसकी मर्दाना वजाहत में मजीद इजाफा कर रही थी, जबकि मरजान पुरसकून नजरों से उसे देख रही थी। मरजान, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आलियार गुस्से से चीख पड़ा। आलियार का दिल कर रहा था कि वो अपने सामने खड़ी इस पत्थर की मूरत को झंझोड़ कर रख दे, जिसने उसकी मोहब्बत का और उसके जज्बात का मजाक बनाया था। मरजान, मुझे जवाब दो, तुम अचानक कहाँ चली गई थी? आलियार ने उसके बाजू से पकड़कर उसे बुरी तरह से झंझोड़ दिया। मरजान ने सद नजरों से आलियार को देखा
और उसकी अदाकारी की दाद दी। क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो? मरजान ने सर्द से लहजे में आलियार से पूछा। आलियार उसका अजीब सा लहजा सुनकर एक लम्हे के लिए ठुठक गया। मरजान का ये सवाल उसे हरगिज समझ नहीं आया। मरजान, ये कैसा सवाल है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? आलियार ने गुस्से से मरजान से पूछा। मेरे सवाल का जवाब दो आलियार। मरजान ने अपने सीने पर हाथ बांधे आलियार की आंखों में झांकते हुए कहा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं मरजान, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मैं इन 5 सालों में एक पल भी सुकून से नहीं रह सका और ना ही एक रात सुकून से सो सका हूं, आलियार ने जब्त से कहा था। मरजान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वो आलियार को झूठ बोलता देख रही थी। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो हम अभी निकाह कर लेते हैं, मरजान ने आलियार की आंखों में झांकते हुए कहा। मरजान की बात सुनकर आलियार चंद लम्हों के लिए ठहर सा गया। वो उसकी जिंदगी से 5 सालों तक गायब रही थी और अब अचानक उसके सामने आकर उसे निकाह करने को कह रही थी। आलियार का दिमाग चकरा कर रह गया। वह हैरत और बेयकीनी से अपने सामने खड़ी इस लड़की को देख रहा था जिसके बारे में 5 साल पहले वो ये दावा कर सकता था कि वो उसकी रग रग से वाकिफ है, मगर आज उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो तो उस लड़की से वाकिफ ही नहीं था। मरजान, हम बैठकर बात करते हैं। तुम बताओ तो सही, तुम मुझे अचानक छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने इन 5 सालों में तुम्हारे घर के जाने कितने चक्कर लगाए, मगर तुम और तुम्हारे बाबा वहां नहीं थे। किसी को भी तुम लोगों के बारे में मालूम नहीं था, आलियार ने नरम लहजे में मरजान से कहा। आलियार की बात सुनकर मरजान के होठों पर मुस्कुराहट बिखरी। इसका मतलब है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, मरजान ने इत्मीनान से कहा। आलियार लम्हे भर को खामोश हुआ। मरजान, ये बात तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूं, फिर भी तुमने मेरे साथ ये सब किया, आलियार ने दुखी लहजे में कहा। जब भी कह रही हूं, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझसे अभी निकाह कर लो, वरना तुम मुझे भूल सकते हो। हमारे रास्ते हमेशा के लिए जुदा हैं। मरजान के लहजे में ऐसा कुछ था कि आलियार उसे देख कर रह गया। ये वो मरजान तो हरगिज नहीं थी जिससे उसने मोहब्बत की थी। उसकी मरजान तो बहुत मासूम थी। ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए राजी हूं, लेकिन हमारे घर वाले भी तो इस निकाह में शरीक होंगे। मैं अपने माँ बाप के बगैर कैसे तुमसे निकाह कर सकता हूं? तुम भी अपने बाबा के बगैर मुझसे निकाह नहीं कर सकती, आलियार ने उसे समझाने की कोशिश की थी। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर वाले हमारे निकाह में शरीक हों, मरजान ने खुश्क लहजे में कहा। आलियार उसे देख कर रह गया। ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने पर राजी हूं, आलियार ने ठंडी सांस भरते मरजान से कहा। मरजान के होंठों पर एक जानदार मुस्कुराहट उभरी और आलियार उसे दोबारा खोना नहीं चाहता था। उसने मरजान के बगैर ये 5 साल रोते तड़पते गुजारे थे। वो मरजान के सामने अपना दिल खोल कर रख देना चाहता था, उसे अपनी हर तड़प दिखाना चाहता था, मगर मरजान अपने नाम की मानिंद पत्थर हो गई थी। उसे आलियार की मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं था। वो आलियार की जिंदगी में शामिल होकर उन लोगों को बर्बाद कर देना चाहती थी जिसकी वजह से वो और उसके बाबा बर्बाद हो गए। मरजान आलियार के निकाह में आ चुकी थी। आलियार उसे पाकर बहुत खुश था, जबकि मरजान गहरी सोच में खोई हुई थी। आलियार, मुझे बाबा से मिलना है, उसके बाद हम लोग तुम्हारे घर चलेंगे, मरजान ने आलियार की जानिब देखते धीमे लहजे में कहा। आलियार ने इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर बाद आलियार और मरजान असफंदियार के सामने बैठे थे, जबकि असफंदियार आफंदी को बिल्कुल चुप लग गई थी। वो हैरत और बेयकीनी से अपनी बेटी को देख रहे थे जो अचानक से आलियार से निकाह करके उनके सामने आ गई थी, जबकि आलियार असफंदियार आफंदी की ये हालत देखकर हैरान था। अंकल, आप लोग अचानक कहाँ चले गए थे और आपकी ये हालत कैसे हुई? आप लोग कम से कम मुझे फ़ोन करके बता तो सकते थे कि आप लोग कहाँ मौजूद हैं।
आलियार ने असफंदियार से शिकायती लहजे में कहा, जबकि असफंदियार उसकी बात सुनकर महज मुस्कुरा सके, जबकि मरजान बिल्कुल खामोश बैठी थी। आलियार अपनी जगह से उठा और मरजान को मुखातिब किया। मरजान, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। आलियार ने यह कहकर अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। मरजान, ये सब क्या है बेटा? तुम इस शख्स से निकाह कर चुकी हो जिसने तुम्हारी मोहब्बत का मजाक बनाया था, जिसका बाप हमसे हमारा सब कुछ छीन चुका है। तुम उस शख्स से कैसे निकाह कर सकती हो? असफंदियार के लहजे में इस वक्त महज दुख था। बाबा, मैंने आपको आपकी खोई हुई इज्जत और मुकाम दिलाने के लिए ही यह निकाह किया है। मैं आपको हर चीज़ वापस लौटाना चाहती हूँ जो आपकी थी, और उसके लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगी। मरजान ने किसी गैर मरई नुक्ते पर नजरें मरकूज किए जवाब दिया, और फिर वो भी अपनी जगह से खड़ी हुई। मेरे लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और वैसे भी मैं कुछ दिनों में लौट आऊँगी। मरजान ने अपने बाबा के सीने से लगते हुए कहा। असफंदियार ने अपने जिगर के टुकड़े को अपने सीने से लगाया। उनसे मिलकर मरजान बाहर आ गई थी। आलियार उसी का इंतज़ार कर रहा था। मरजान के गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद मरजान आलियार के संग उसके घर में दाखिल हुई। शम्स खान और रुबीना बेगम उस वक्त लाउंज में ही बैठे हुए थे। इतने सालों बाद वो मरजान को अपने सामने देखकर बेयकीनी और हैरत से अपनी जगह खड़े हुए। उससे ज़्यादा धचका उन्हें इस बात पर लगा कि मरजान आलियार के साथ थी। वो दोनों ही हैरत से आलियार और मरजान को देख रहे थे। बाबा, मैं मरजान से निकाह कर चुका हूँ, आलियार ने सर झुकाए धीमे लहजे में कहा, जबकि मरजान सर उठाए खड़ी थी। शम्स खान के पैरों तले से ज़मीन निकली। जिस लड़की को वो झूठ बोलकर 5 साल पहले अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल चुके थे, वो आज उनके सामने उनके बेटे की बीवी के रूप में खड़ी थी। ये क्या बकवास कर रहे हो आलियार? शम्स खान हलक के बल चिल्लाए, जबकि आलियार का सर मजीद झुका। वहीं रुबीना बेगम भी शौक की कैफियत में थी। आलियार, मुझे रूम में जाना है, मरजान ने शम्स खान के गुस्से को नज़रअंदाज करते आलियार को मुखातिब करके कहा, जबकि शम्स खान उसकी बात सुनकर पीछो ताप खाकर रह गए। आलियार, तुम कैसे इस लड़की से मेरी इजाज़त के बगैर निकाह कर सकते हो? शम्स खान मजीद गुस्से से चिल्लाए। आलियार ने मदद तलब नज़रों से अपनी माँ की सिमत देखा। रुबीना बेगम ने आगे बढ़कर मरजान की तरफ बढ़ी और उसे मोहब्बत से अपने गले से लगाया, मगर मरजान अपने चेहरे पर पथरीले तासुरात सजाए खड़ी थी। वो शर्मिंदा सी होकर पीछे हटी थी। मरजान, तुम मेरे साथ आओ बेटा। रुबीना बेगम मरजान का हाथ थामे उसे लिए आलियार के कमरे की तरफ बढ़ी। मरजान ने कमरे की तरफ जाते पलट कर आलियार को देखा। आलियार, गाड़ी में मेरा सामान है, प्लीज वो लेकर आना। मरजान ने एक अचपटी सी नज़र शम्स खान पर डाली। उनकी हालत देखकर उसे अंदाज़ा हो रहा था कि शम्स खान को मात देने की शुरुआत हो चुकी है। वो उनको मात उन्हीं के बेटे के जरिए देना चाहती थी। शम्स खान पेचो ताप खा कर रह गए, जबकि आलियार ने हैरानी से मरजान की खुद एतमादी को देखा। शम्स खान को यकीन नहीं आ रहा था कि आलियार उनकी मर्जी के बगैर इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है, इसलिए वो गुस्से से पागल हुए जा रहे थे, जबकि रुबीना बेगम उन्हें मुसलसल समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर उनका गुस्सा किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आलियार, तुम अपने कमरे में जाओ, रुबीना बेगम ने आलियार से कहा, जबकि शम्स खान ने घूर कर अपनी बीवी को देखा, जो उन्हें नज़रअंदाज किए अपने बेटे से कह रही थी। आलियार सर झुकाए अपने कमरे की तरफ चला गया। वो जानता था कि उसने अपने बाबा की मर्जी के खिलाफ ये कदम उठाया है, इसलिए उनका नाराज़ होना बनता है, मगर वो ये नहीं जानता था कि 5 साल पहले उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे उसके बाप का हाथ शामिल था। अगर वो ये सच जान जाता तो उसका दिल टूट जाता। आलियार अपने कमरे में आया तो मरजान बेड पर बैठी थी। आलियार ने एक नज़र उस हुस्न की मूरत की तरफ देखा और फिर एक ठंडी सांस भरकर
उसने कमरे के दरवाजे को लॉक किया। वो उसे दिल भर के देखना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। आलियार को अपनी जानिब बढ़ते देखकर मरजान अपनी जगह से उठी। बहुत देर लगा दी तुमने मेरा सामान लाने में, मैं काफी देर से इंतजार कर रही थी। मरजान ने अपना सूटकेस खोला और उसमें से अपने पहनने के लिए कपड़े निकालने लगी। मरजान, तुम इन 5 सालों में कहाँ थी और क्यों तुम मुझे बताए बगैर चली गई थी? आलियार ने मरजान के सामने खड़े होते कहा। ये बातें करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। मरजान ने आलियार की तरफ देखे बगैर कहा और अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ चली गई। आलियार ने जब्त से अपनी मुट्ठियां भींची। मरजान अपने कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई तो आलियार बेड पर नीम दराज उसी का इंतजार कर रहा था। मरजान को देखकर उसकी आंखों में खुमारी उभरी थी। उसने मरजान का हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब घसीटा, जबकि मरजान उसे घूर कर रह गई। आलियार, छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है, मरजान ने बिगड़े हुए तेवरों के साथ कहा, जबकि आलियार के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। मुझे गुजरे 5 सालों का हिसाब चाहिए। आलियार ने उसके भरे भरे होंठों पर अंगूठा फेरते नरमी से कहा। आलियार, मुझसे दूर रहकर बात करो, मरजान ने उसकी मजबूत गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते कहा। तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा, मेरी हर बेचैनी को सुकून में बदलना होगा। आलियार उसके हुस्न के मश्त में खोता हुआ बोला, जबकि मरजान उसे नजरें चुरा कर रह गई। आलियार उसके हुस्न में डूबता जा रहा था। मरजान ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर आलियार उसे अपना रिश्ता मुकम्मल कर चुका था। उसे खौफ था कहीं मरजान दोबारा उसे छोड़ कर ना चली जाए, इसलिए वो मरजान की मर्जी के बगैर उसे अपना बना चुका था। मरजान बेबस होकर रह गई थी। वो आलियार की शिद्दतों के सामने कुछ ना कर सकी। मरजान नहाकर वॉशरूम से बाहर आई तो आलियार ने अलमारी में से एक ड्रेस निकालते उसकी तरफ बढ़ाया। मरजान, तुम ये कपड़े पहनो, ये कलर तुम पर बहुत सूट करता है। आलियार ने अपनी आंखों में मोहब्बत भरे मरजान से कहा। मरजान ने उसके हाथों से ड्रेस लेकर एक साइड पर रखा। आलियार ने मरजान की नाजुक सी कलाई थामी और उसे अपने करीब किया। मरजान ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर आलियार को उसकी ये मदाखलत पसंद नहीं आई थी। आलियार के माथे पर बल पड़े थे। उसने अपने और मरजान के दरमियान से हर फासला मिटाया और दुरुस्त लहजे में बोला, मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूं, तुम क्यों मुझे खुद से दूर कर देती हो? तुम्हें मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर क्या मिलता है? आलियार का ज़ब्त भी अब जवाब दे गया था, मगर मरजान ने उसकी आंखों में देखने से गुरेज किया। मरजान, मुझे जवाब दो, तुम क्यों मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो? आलियार का लहजा जिद लिए हुए था। ये सवाल तुम मुझसे कर रहे हो? मरजान ने आलियार की आंखों में झांकते हुए कहा। वो भी अब थक गई थी। जिस मकसद के तहत उसने आलियार से शादी की थी, उसका वो मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ था। वो अपने बाबा को उनका खोया हुआ मुकाम दिलवाना चाहती थी, मगर अब तक ये मुमकिन नहीं हो सका था। फिर तुम ही बताओ, मैं किससे सवाल करूं? आलियार ने थके हुए लहजे में कहा। जब तुम और तुम्हारे बाबा मेरे बाबा से उनका कारोबार छीन रहे थे, जब तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये तुम क्या कर रहे हो, और फिर भी सवाल मुझसे कर रहे हो। मरजान ने अपना वजूद उसकी गिरफ्त से छुड़ाते नफरत से कहा। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो तुम? आलियार ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी वजह से मैं और बाबा यहां से गए थे, क्योंकि तुम लोगों ने हमारा सब कुछ छीन लिया था। मरजान ने रोते हुए आलियार से कहा। आलियार के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसे अभी मरजान की बातें समझ नहीं आ सकी थी। मरजान, मुझे ठीक से बताओ, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आलियार ने थके हुए लहजे में कहा। आलियार, बस कर दो, और कितना झूठ बोलोगे? तुम्हारे बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। मुझे सब कुछ पता चल गया था। तुमने मुझसे मोहब्बत का ड्रामा किया, मेरे जज्बात के साथ खेला। मरजान ने आलियार के सीने पर हाथ रखे उसे धक्का देते कहा। आलियार अपनी जगह से चंद कदम पीछे हटा।
जबकि मरजान का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। बाबा ने ये सब तुमसे कब कहा? आलियार ने संजीदा लहजे में मरजान से सवाल किया। तुम्हारे बाबा हमारे घर आए थे। उन्होंने धोखे से सारे कारोबार पर कब्जा कर लिया था। मेरे बाबा से धोखे से साइन करवा लिए थे। वो यही बताने हमारे घर आए थे और फिर उस रोज़ बाबा पर फालिज का अटैक हुआ। उनको दिल का दौरा पड़ा था। मैं उन्हें लिए अस्पताल गई थी। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कोई भी मेरे साथ नहीं था। मैं बिल्कुल तन्हा थी। तुम भी मेरे साथ वक्त गुजारी कर रहे थे। तुम ही बताओ कि मैं क्या करती, कहाँ जाती। इसलिए अपने बाबा को लिए मैं तुमसे बहुत दूर चली गई और अब मैं अपने बाबा का हक वापस लेने आई थी, मगर मैं तो इसमें भी कामयाब ना हो सकी। मरजान दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोई। ये नहीं हो सकता। मेरे बाबा मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। वो सब जानते थे कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, तो वो कैसे मेरे साथ ये सब कर सकते हैं? आलियार ने गर्दन नफी में हिलाई। इससे पहले कि वो गुस्से से कमरे से बाहर जाता, रुबीना बेगम कमरे में आई। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम आंटी से पूछ सकते हो। जिस वक्त तुम्हारे बाबा ने वो सब कुछ कहा था, आंटी भी वहीं मौजूद थी। मरजान ने रुबीना बेगम की तरफ शिकायती नजरों से देखते कहा। रुबीना बेगम का सर झुका था। मरजान सच कह रही है। रुबीना बेगम ने अपने बेटे के बेयकीन चेहरे की तरफ देखते कहा। अब जाकर आलियार को सारी बात समझ आई। क्यों अचानक ही मरजान उसकी जिंदगी से चली गई थी? क्योंकि शम्स खान ने उससे झूठ बोला था कि आलियार उससे मोहब्बत नहीं करता, इसीलिए वो दिल बर्दाश्ता होकर वहां से चली गई थी। अगर वो ऐसा ना करते तो आलियार को सब कुछ पता चल जाता। आलियार को अब समझ आया था कि बिजनेस में पावर ऑफ अटर्नी अचानक से शम्स खान के पास कैसे आ गई। उसने कई बार ये सवाल किया था, मगर वो हर बार उसका सवाल टाल जाते थे। आज आलियार को अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया था। वो मरजान से शर्मिंदा था और बेहद शर्मिंदा था। जबकि मरजान अपने आंसू साफ करते अपने बैग में कपड़े रख रही थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती आलियार। मुझे रह रहकर अपने बाबा की बेइज्जती याद आती है। अगर उस रोज उन्हें कुछ हो जाता तो तुम बताओ मैं क्या करती? मरजान ने बिखरे हुए लहजे में सवाल किया। आलियार के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। मरजान अपने घर जा चुकी थी, जबकि आलियार बिल्कुल टूट गया था। आलियार शम्स खान के सामने खड़ा था। आपने ये सब क्यों किया? आपने अपने ही बेटी की खुशियों के साथ खेला। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आलियार ने नम लहजे में उनसे सवाल किया। शम्स खान ने गुस्से से पहलू बदला। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी बाबा। आप अपने बेटे को ही इतना बड़ा धोखा देंगे? आलियार ने जब्त से कहा। मैं असफंदियार अंकल को उनके हिस्से के पेपर्स देने जा रहा हूं, जिन पर एक धोखे से आपने साइन करवाए थे। आलियार ने मजबूत लहजे में कहा और तेजी से घर से निकल गया, जबकि शम्स खान खामोशी से उसे जाता देखते रहे। जिस वक्त आलियार असफंदियार के घर पहुंचा, रात होने को आई थी। वो उनके घर में दाखिल हुआ तो असफंदियार उसे लाउंज में ही बैठे मिल गए। आओ बेटा, असफंदियार ने आलियार को देखते हुए कहा। अंकल, मैं यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। 5 साल पहले जो कुछ मेरे बाबा ने किया, मैं उससे वाकिफ़ नहीं था। अगर मुझे उस वक्त ये सब कुछ पता चल जाता तो मैं ये कभी ना होने देता। इसलिए मैं ये पेपर्स आपको देने आया हूँ। इस कारोबार में आपका हिस्सा था और रहेगा। कोई भी आपको इस कारोबार से बाहर नहीं निकाल सकता। आलियार ने वो पेपर्स असफंदियार के सामने रखते कहा और वहां से जाने लगा था कि पीछे से उसे असफंदियार की आवाज़ सुनाई दी। तुम मरजान को लेकर नहीं जाओगे? आलियार के कदम जंजीर हो गए। मैं मरजान से शर्मिंदा हूं। मैं सब कुछ ठीक कर सकता था। काश मरजान एक बार मुझ पर भरोसा कर लेती। मैं ये 5 साल ज़ाया होने नहीं देता। आलियार ने दुखी लहजे में कहा। वो बिल्कुल टूट गया था। आलियार, उसे मरजान की आवाज़ सुनाई दी। आलियार ने पलटकर नम नज़रों से उसे देखा। मुझे लेकर नहीं जाओगे?
सादा से गुलाबी रंग के लॉन के सूट में वो नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। आलियार पूरे दिल से मुस्कुरा दिया, जबकि मरजान भी नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। वो एक बार फिर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही थी। सब कुछ भूलकर वो अपनी जिंदगी में खुश होना चाहती थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।